Hello students, I am Sanjit Kumar Giri. This is my YouTube channel. If you see the next videos, then please subscribe my channel. In the previous class, I was already discussed about transistor, different type of transistor. That means PNP and NPN transistor. And also discussed about the characteristic of common base configuration, but today I have discussed about characteristic of common emitter configuration. What is the common emitter configuration? That means emitter is both common in case of input and also output. So this is the circuit diagram of circuit diagram kaharo na circuit diagram jogu ame circuit diagram jogu ame kon study kari pariba na NPN transistor C mode re jo characteristic अछि common emitter mode re jo characteristic se characteristic ta हम study kari pariba. So ei jo figure re ame dekhi pariba eta hoche emitter, এটা বেস, এটা হচ্ছে কলেক্টর. সো এমিটরটা ইনপুট সাথে আছে, আউটপুট সাথে, তাহলে আমি কই পারিবা কমন এমিটর ট্রানজিস্টরটা গোটে আর কমন এমিটর আকারে সার্কিটরে কনেক্ট হইছে. সো ইয়া সাথে মধ্যে ভোল্টমিটার এমিটর মধ্যে কনেক্ট হইছে ইনপুট আর আউটপুট রে. এইথিপাই কারণ এমিটর র কাম হচ্ছে কারেন্টটাকে মেজর করিব, আউটপুট র আর যে আমার ভোল্টেজ র যে ভোল্টমিটার কাম হচ্ছে voltage को measure करियो. So the circuit diagram to study the characteristic of a PNP transistor in C mode is shown in the figure. I have already discussed. Voltmeter and emitter are used to measure the input and output voltages and currents. Output और input current को measure करिया पाई emitter दिटा यूज होइछि, से बळी output और input voltage measure करिया पाई दिटा voltmeter हम यूज करछु. सो प्रथमे जानिबा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहार ना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन रे. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मु प्रथम रो ऑलरेडी कहिছে जे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट भितरे जो कर्वटा में तयारी करबा ताको हमें कहि परिबा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज द कर्व बिटवीन इनपुट करंट, दैट मींस दिस इज द बेस करंट IV and base emitter voltage VB at constant collector emitter voltage VC. जदि आमे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कथा चिंता करिबा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन रे, तले आमे कर्व करिबा का भीतर कर्व करिबा ना बेस करंट IB आउ जो बेस एमिटर वोल्टेज VB. बर्तमान यार भितर आम जो आमर ग्राफटा जो कर्वटा ड्र करवा किंतु से कन्स्टांट क्या रखा ना VC. सो आम बर्तमान ये फिगर दर्शेचु जे 3 वोल्ट रही फर्स्ट लाइन फिक्स ही रही, सेकेंड लाइन 5 वोल्ट रही कॉमन एमिटर वोल्टेज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. सो ये दीटा ग्राफ आम कन्स्टांट कर रखीचु. बर्तमान VB आउ IB टा को बढ़ेबु, VB टा को बढ़ेबु, देखिबा IB रो केते परिमाण रो चेंजेस होछि. सो द कॉमन एमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर VC होछि 3 वोल्ट 5 वोल्ट एज shown in the figure already I was discussed. So look at the figure. In the case of base current it is increase rapidly. बहुत अधिक परिमाण करेन्टा मूव करुच्ची किंतु बहुत कम परिमाण बेस एमिटर वोल्टेज टाको आम चेंज करवा जो बढ़ेवा जो आम कहीपर फर्स्ट पॉइंट द बेस करेंट IB इज इनक्रीज रैपिडली विथ द इंक्रीज इन बेस एमिटर वोल्टेज. जदि बहुत कम परिमाण बेस एमिटर वोल्टेज टाको आम बढ़ेवा द्वारा करेन्टा शार्पली इंक्रीज करें निश्चित भाव में कहीपर निश्चित भाव में VC परिवर्तन जो कौन प्रभाव पड़े ना क्या ना IB कहीपर The base current IB is also independent of collector emitter voltage VC.
Uh, in this graph, we also calculate the input voltage, input resistance. We know that voltage is equal to current into resistance, or resistance equal to voltage by current. So in this case, voltage is VV, current is IB. So definition is input resistance definition is, it is the ratio of change in base emitter voltage to the change in base current at a constant collector emitter voltage. Collector emitter voltage टाको आमे constant रखी काहार रेशियो करि परिबा ना बेस एमिटर वोल्टेज रो परिवर्तन रो रेशियो का साथी रे ना बेस करंट रो चेंज इन बेस करंट. सो हम लिखि परिबा R इक्वल टू डेल्टा VE बाय डेल्टा IB कांस्टेंट के VC इक्वल टू कांस्टेंट. से बळे हम पढिबा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का भीतर हम करिबा ना आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट भीतर से बेस करंट को हम कांस्टेंट रखिबा. जदि फिगर में देखिबा आउटपुट वोल्टेज टा होची VC, आउटपुट करंट टा होची IC, तले कांस्टेंट का रखिबा ना IB को. तले हम हेटा कहि परिबा the output characteristic for common emitter configuration is the curve between का भीतर ना IC और VC कांस्टेंट के रहिबो बेस करंट IB. सो ए फिगर रे हमें कांस्टेंट का रख दिचु ना IB को कोन कोन रखिचु -0.1 मिली एम्पियर फर्स्ट ग्राफ पई, सेकंड टा पई -0.2, थर्ड टा पई -3.2 ए भली सब रहिछ. सो ए अनुसार हमें कर्व टा को ड्रा करछु. सो के कर्व अनुसार हमें देखुछु बहुत कम कॉमन एमिटर वोल्टेज VC बहुत कम परिमाण रो बढ़ेवा द्वारा कलेक्टर करंट टा रैपिडली इंक्रीज करियो. तमे हम कहि परिबा the collector current increases rapidly with the increase in reverse collector emitter voltage. This is because reverse because it is also negative. So এই जो कथा हमें कहबा ओनली 0 और -1 भीतर देखो करंट टा पूरा शार्पली इंक्रीज करिछि, तापर सैचुरेटेड इज कांस्टेंट इज. तला कहि परिबा the collector emitter current increases rapidly with the increases reverse collector emitter voltage only का भीतर ना 0 और -1 वोल्ट भीतर एतिके हमें बढ़ेला भीतर ये करंट टा शार्पली इंक्रीज करिउछि. So maximum value टा में केते बेले पाउछु ना the maximum value of VC up to which the collector current increases rapidly with the increase in VC is called knee voltage. जो maximum voltage जगु जो maximum current टा सृष्टि होउची जो voltage जगु जो पॉइंट रे maximum current IC सृष्टि होउची से voltage टा को हम कहि परिबा knee voltage. So above knee voltage, the collector current increases very slowly with the increase in reverse collector emitter voltage. आमे इठा देखुछु ए knee voltage परे मध्य करंट हल्का भाबरे बढ़ुची ना ए जो बढ़ुची सेटा का जोगु ना रिवर्स कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो. ए ग्राफ रा में पाई परिबा आउटपुट रेजिस्टेंस केमिति पाइबा ना आउटपुट वोल्टेज बाय आउटपुट करंट. Then it is the ratio of change in collector emitter voltage VC to the change in collector current IC. ये का चले देता और कुछ लोग का ऐसे शॉप में किसी ऑर्डर दे दी आज की सैनिटाइजर गाड़ी खड़ी किचन जरूर एयर ना सो आम कही पाइबा बेस करंट आईबी टा को कांस्टेंट रखी जदि आम कलेक्टर करंट रो परिवर्तन करिवु त निश्चित भाव में कलेक्टर एमिटर वोल्टेज रो मध्ये परिवर्तन हबो. एमान को रेशियो टा को आम कही परिबा आउटपुट रेजिस्टेंस को आम सिंबल लिखि परिबा RO और R नॉट इक्वल टू डेल्टा VC बाय डेल्टा IC कांस्टेंट रहइबो बेस करंट आईबी. सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एटा प्रथम रो मु कहि देछि इनपुट करंट और आउटपुट करंट भितरे जो कर्व टा हम तयारी करबा ताको हम कहि परिबा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. ए जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कथा जदि हम देखिबा ए केस रे बेस करंट आउची इनपुट करंट, कलेक्टर करंट आउची आउटपुट करंट. तला आउ एटा सबले स्ट्रेट लाइन नै थाय. तला हम कहि परिबा द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक for common emitter configuration is the curve between collector current and base current at a constant collector emitter voltage. Now this line is सबुबेले straight line now. Then the next one is the characteristic of common collector configuration. जदि हम common collector configuration रा characteristic देखिया पई चाहिबा जदि ट्रांजिस्टर टा गोटे common ट्रांजिस्टर केस रे
कलेक्टरटा कॉमन रहिबो ए सर्किट डायग्राम रो बोथ इनपुट और आउटपुट पई तले हम तो कोइ परिबा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो प्रथम हम कोन करबा ना गोटे सर्किट डायग्राम तैयारी करबा से सर्किट डायग्राम रे ट्रांजिस्टर टा को एमिति भाव रखिबा निश्चित भाव रे तार कलेक्टरटा इनपुट और आउटपुट को कॉमन रहिबो। देखो एटा हम देखि परिबा एटा होची कलेक्टर एटा बेस और एटा होची एमिटर। सो एई केस रे में गोटे फिगर टी ड्रॉ करछु एथरे भी मध्य से एनपीएन ट्रांजिस्टर रहिछि आ वोल्टमीटर भी मध्य दीटा रहिछि एमिटर भी मध्य दीटा रहिछि एटा गोटे एमिटर एटा गोटे एमिटर ए वोल्टमीटर मध्य दीटा रहिछि वोल्टमीटर काम होछि से वोल्टेज टा मेजर करिवो एमिटर काम होछि करंट टा से मेजर करिवो। सो जदि हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कथा चिंता करिबा तले हमें निश्चित भाव रे कहि परिबा काका भीतर कर्व ड्रॉ करिबा ना इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट भीतर एई केस रे जदि हमें देखिबा इनपुट करंट होछि आईबी इनपुट वोल्टेज होछि काका भीतर ना इनपुट वोल्टेज टा हबो बेस और कलेक्टर भीतर त माने वीसी तले हमें कहि परिबा the input characteristic for common collector configuration is the curve between base current IB और base collector voltage VCB सेतेबेले constant रहइबो आउटपुट वोल्टेज ता होछि कलेक्टर और एमिटर भितरे जहा को हम कहि परिबा VEC। सो ए जो फिगर टी हमें ड्रॉ करछु से फिगर को जदि लोकेट करिबा ताले VEC ता को हमें प्रथम रो ही फिक्स कर दिछु प्रथम ग्राफ पई 2 वोल्ट द्वितीय पई 4 वोल्ट तापर 6 वोल्ट देन हमें कोन करलु ना रिवर्स वोल्टेज रे कि हमें बेस कलेक्टर वोल्टेज टा को बढ़ेलु से अनुसार करंट टा देखिलु तो आमे जदि फिगर रे देखिबा ताले फर्स्ट पॉइंट आमे पाई परिबा करंट टा रैपिडली इंक्रीज करिउस किंतु मात्र बहुत कम परिमाणर बेस कलेक्टर वोल्टेज टा बढ़ेबा जो ताले हम कहि परिबा दी बेस करंट आईबी इज इंक्रीज रैपिडली विथ द इंक्रीज इन बेस कलेक्टर वोल्टेज। सो दे जदि बहुत कम परिमाणर बेस कलेक्टर वोल्टेज टा बढ़ेबा द्वारा आमर जो बेस करंट टा बढ़ुची ताले निश्चित भाव रे ए जो कांस्टेंट हम जहा को रखिछु ता ऊपर बेस करंट टा डिपेंड करे ना ए कांस्टेंट टा किए ना VEC ताले हम कहि परिबा द बेस करंट IB इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एमिटर कलेक्टर वोल्टेज VEC। ए ग्राफ रे हम पाई परिबा इनपुट रेजिस्टेंस पूर्व भी आलोचना करिछि ताले हम कहि परिबा इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस कलेक्टर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट आउटपुट इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट कांस्टेंट रहइबो सेतबेला आउटपुट वोल्टेज VEC ताले हम लिखि परिबा इनपुट रेजिस्टेंस रो सिंबल RI इक्वल टू डेल्टा VEC बाय डेल्टा IB। सो तापर हम पढिबा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ता होछि गोटे कर्व ऑलरेडी हम कहि दैछि एट का भीतर ना आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट भीतर ताले हम कहि परिबा द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन is the curve between emitter current this is the output current emitter current IE and output voltage is emitter collector voltage VEC ताले जदि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट भितरे ग्राफ टा हम करबा सेतबेले इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखिबा आ से इनपुट करंट टा होछि बेस करंट IB ताले ए फिगर रे प्रथम प्रत्येक ग्राफ पई गोटे गोटे वैल्यू हम IB बेस करंट रो फिक्स कर रखिछु प्रथमटा पई 0 मिली एम्पियर तापरटा -10 तापरटा -20 -30 ए बडी सब हम फिगर रे दर्शाइछु। सो ए फिगर रे जदि हम देखिबु मात्र जो हमर रहिछि एमिटर आ कलेक्टर भीतर जो वोल्टेज एमिटर कलेक्टर वोल्टेज मात्र 0 रु 1 भीतर जदि हम ताको चेंज करूछु ताले करंट मैक्सिमम यूज ताले हम कहि परिबा द एमिटर करंट I increases rapidly with the increase in emitter collector voltage VEC between 0 and 1 volt only ताले जो वोल्टेज रे हमें करंट मैक्सिमम कहूछु ताको निश्चित भाव रे नि वोल्टेज हमें कहि परिबो ताले हम कहि परिबा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VEC अप टू व्हिच द एमिटर करंट इंक्रीजेस रैपिडली सती वोल्टेज पर्यंत जदि करंट मैक्सिमम भाव रे रैपिडली इंक्रीज करे ताले से वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहि परिबा किंतु तापर भी हमें देखुछु नी वोल्टेज पर भी करंट स्लाइटली इंक्रीज करछि तब निश्चित भाव रे
above the new voltage the emitter current increases बहुत slow बहुत कम परिमाण increase करूची due to the increase in emitter collector voltage emitter collector voltage टा बढ़ेवा द्वारा new voltage परे भी मध्य current टा बहुत कम परिमाण increase करूची ए ग्राफ आम आउटपुट रेजिस्टेंस पाई परिबा आउटपुट रेजिस्टेंस केमिति पाइबा ना आउटपुट वोल्टेज VC डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट IE तले हम लिखि परिबा इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर वोल्टेज एमिटर कलेक्टर वोल्टेज VC टू द चेंज इन एमिटर करंट IE एट कांस्टेंट तले कांस्टेंट के रहइबो बेस करंट IB जदि हमें सी सिंबल टाको R0 बोल लिखुछु इट इज डिनोटेड बाय R0 ताला R0 इक्वल टू हम लिखि परिबा डेल्टा VC बाय डेल्टा I एट कांस्टेंट IB so similar case transfer characteristic input current and output current between the curve is known as transfer characteristic टा का भीतर हे परिबो ना IB आउ I भीतर सेतबे कांस्टेंट के रहइबो ना आउटपुट वोल्टेज टा कांस्टेंट रहइबो से आउटपुट वोल्टेज टा को हम कहि परिबा VC एमिटर कलेक्टर वोल्टेज from the above three configurations, that is common emitter, common base and common collector, we are concluded that there are the three transistor constants are arises. It is also known as amplification factor. So in the first case common base configuration we get common base current amplification factor, it is symbol is alpha. So it is defined as current amplification factor is drawn from the transistor characteristic. So in the first case, in the common base current amplification is defined as the ratio of change in collector current to the change in emitter current at constant collector base voltage. This is drawn from the transistor characteristic of common base configuration. एटा में ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक रू पाई परिबा जते बेले कॉमन ट्रांजिस्टर टा गोटे बा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कहार ना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ता माने हम पाइलु ए जो कलेक्टर बेस वोल्टेज टा एटा होछि तार आउटपुट वोल्टेज एमिटर करंट टा होछि तार इनपुट कलेक्टर करंट टा होछि तार आउटपुट करंट सो हम कहि परिबा it is denoted by a जो amplification factor टाको हमें अल्फा लिखि परिबा अल्फा इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट माने डेल्टा IC बाय चेंज इन एमिटर करंट माने डेल्टा I सेता कांस्टेंट रहइबो आउटपुट वोल्टेज किए ना कलेक्टर बेस वोल्टेज से बोली जति हमें सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कथा कहबा एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन कथा कहबा कॉमन एमिटर कथा कहबा सेता बेले जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर टा हमें पाइबा बीटा पाइबा से ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक रू ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कथा जामे जति हमें कहउथले तार डेफिनेशन टा हमें कोन पाउथले जो हमरो जति हमें देखिबा कॉमन एमिटर केस रे जति हमें देखिबा से जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमें पाउथले का भीतर कर्व ना कलेक्टर करंट आ बेस करंट भीतर कांस्टेंट किंतु रहउथला कलेक्टर एमिटर वोल्टेज सो एठी भी मध्ये हमें सेया पाइबा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट IC to the change in base current IB constant रहइबो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज तले हम लिखि परिबा बीटा इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IB कांस्टेंट के रहइबो VC कोइ परिबा बा VC कोइ परिबा एटा कांस्टेंट रहइबो से बोली लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कथा जदि हम कहबा कॉमन कलेक्टर कथा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक रहिछि सेटु हमें एटा पाइथिबा ए एप्लीकेशन करंट एप्लीकेशन फैक्टर टा तार सिंबल हमें लिखि परिबा गामा सो गामा इक्वल टू हमें लिखि परिबा रेशियो बिटवीन चेंज इन एमिटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट बेस इज करंट इज द आउटपुट करंट इनपुट करंट एमिटर करंट इज द आउटपुट करंट इन common collector case so emitter collector voltage is also the output voltage so हमें पाई परिबा गामा इक्वल टू डेल्टा E बाय डेल्टा IB कांस्टेंट रहइबो VC सो वर्तमान हमें जो तीनोटी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पाइलु बा ट्रांजिस्टर कांस्टेंट सब हमें पाइलु ताको भितर प्रथम दीटा कथा जदि कहबा हमें जो कॉमन बेस रे जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर टा पाइलु ताको हमें अल्फा कहंती कॉमन एमिटर जो हमें पाइलु ताको बीटा कहंती ताको भितर हमें रिलेशन बाहर करबा ताको भितर जदि रिलेशन बाहर करे हमें चाहिबा
First, we know that from the transistor, working of transistor or action of the transistor, we also know that the equation I equal to IB plus IC. তাহলে আমি লিখি পারিবা the emitter current for the transistor is given by I equal to IB plus IC. this side रे जदि हमें चेंज इन रे लिखिबा ताले डेल्टा I equal to पाई परिबा डेल्टा IB plus डेल्टा IC. बर्तमान आम कौन करवा ना डेल्टा IC टाक डिवाइड करदे ताले लिखि परिबा डिवाइडिंग डेल्टा IC इन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन. जदि दिस साइड रे हमें डेल्टा IC टाक डिवाइड कर दे परिबा ताले हमें पाई परिबा लेफ्ट हैंड साइड टा हिजबो डेल्टा I by डेल्टा IC इक्वल टू राइट हैंड साइड टा हिजबो डेल्टा IB plus डेल्टा IC प्लस नेक्स्ट टर्म टा हबो 1 कारण बिकॉज़ डेल्टा IC by डेल्टा IC is 1. So this is the equation number 1. But we know that from the transistor characteristic common base configuration alpha equal to delta IC by delta I and common emitter case beta equal to delta IC by delta IB. So putting the value of alpha and beta in equation 1, we get 1 by alpha equal to 1 by beta plus 1. So implies that 1 by alpha equal to the right hand side time loss out 1 plus beta by beta. So जदि आम लेफ्ट हैंड साइड उल्टेवा देन राइट हैंड साइड टाक भी उल्टेवा. So implies that alpha equal to beta by 1 plus beta. This is the relation between alpha and beta. But this is the alpha in terms of beta. But in the question, if we calculate beta in terms of alpha, then we get we know that from the above equation alpha equal to beta by 1 plus beta. So जो डिवाइड की जो 1 plus beta अच्छे तक हमें लेफ्ट हैंड साइड को नहीं परिबा. So 1 plus beta is going to the left hand side or 1 plus beta is multiplying in the both sides, then we get हम पाई परिबा alpha into 1 plus beta equal to beta. So बर्तमान हमें कौन करिबा लेफ्ट हैंड साइड टाको हमें जदि ब्रैकेट टर्म टाको हटे दबा ब्रैकेट टाको हमें हटे दबा ताले हमें लिखि परिबा अल्फा टा मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई होले अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा. बर्तमान लेफ्ट हैंड साइड रे जो बीटा टर्म टा अछि ताको हमें राइट हैंड साइड को नै जिबा बा लेफ्ट हैंड साइड रे जो लेफ्ट हैंड साइड रे जो बीटा टर्म टा अछि ताको हमें राइट हैंड साइड को नै जिबा. ताले हमें लेफ्ट हैंड साइड रे पाइबा कोन ना अल्फा ओनली पाइबा अल्फा इक्वल टू जो अल्फा बीटा थिला से डाउन साइड को पळेले हिजबो बीटा माइनस अल्फा बीटा. So implies that alpha equal to पाइले बीटा ई टर्म रो कॉमन नै होले 1 minus alpha. So beta equal to alpha by 1 plus alpha. This is the relation between alpha and beta. Now next one is the first amplification factor and third amplification factor relation. Alpha and beta relation between alpha and gamma. So we also discussed, we know that from the action of the transistor or working of the transistor, we know that the emitter current for transistor is given by I equal to IB plus IC. So this side जदि हमें change in ले जिबा change कथा कहबा त delta I equal to delta IB delta IC. आरटा में delta IC डिवाइड करथिलु बर्तन delta I डिवाइड करिवु जदि delta I डिवाइड करिवु लेफ्ट हैंड साइड रे भी डिवाइड करिवु राइट हैंड साइड रे भी डिवाइड करिवु. जदि हमें लेफ्ट हैंड साइड रे डिवाइड करिवु तले हम पाइबु delta I by delta I होछि 1 equal to हम लिख परिबा डेल्टा IB by डेल्टा I प्लस डेल्टा IC by डेल्टा IB. से बळे हमें वैल्यू पुट करबा अल्फा और गामा रो वैल्यू हमको जणा अछि. ए वैल्यू देटा जदि हम इक्वेशन 1 रे पुट कर दबा तले इक्वेशन 1 रो बाम साइड टा 1 थाउ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें पाइबा 1 by गामा प्लस अल्फा. तले 1 by गामा टा जदि लेफ्ट हैंड साइड को नै आसीबा तले 1 minus 1 by गामा टा हिजबो गामा minus 1 by गामा इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली रहबो अल्फा. तले लिख परिबा अल्फा इक्वल टू गामा minus 1 by गामा. This is the relation between alpha and gamma. Thank you.